Hey everyone, welcome back to Decode IIT and I hope you all are doing very well and welcome to this new lecture. तो लास्ट लेक्चर में हमने एनर्जी को ख़त्म किया था राइट एंड इन दिस लेक्चर वील स्टार्ट विद अनदर टॉपिक इन वर्बल रीजनिंग दैट इज़ क्लासिफिकेशंस. तो थोड़ा बहुत सिमिलर ही है एनर्जी के बट हेयर ऑल्सो वी हैव टू डिटरमाइन रिलेशनशिप्स एंड फाइंड अनदर पेयर बट वी हैव टू फाइंड समथिंग एल्स आई मीन ऑड वन आउट. विल डिस्कस इन द कमिंग लेक्चर कि कैसे हम उसको करते हैं. बट आई होप यू हैड अ गुड प्रैक्टिस ऑफ एनर्जी एज वेल. जो क्लास में क्वेश्चंस हुए हैं कीप ऑन रिवाइजिंग दैट स्टफ राइट एंड ऑल्सो व्हेन वी डिलीवर द लेक्चर्स मेक अ हैबिट ऑफ नोटिंग इट डाउन इन योर नोटबुक. तो जितना आप लिखोगे अपने साइड से द मोर यू विल रिटेन इन योर ब्रेन राइट. तो मैं ऑब्वियसली आपको PDFs एंड ऑल वी कैन प्रोवाइड बट दैट डजंट हेल्प until unless you are working on yourself है ना. तो you have to make it a habit कि when you are doing this question, when you are watching these lectures, so make it a habit to get a notebook and write it down, write the stuff down, whatever you feel is important, whatever you feel that your doubts are, write it on a separate piece of paper. And for the doubts especially, click the picture of those doubts and mail it to us on you can also email us at info@decodeIITofficial.com in this email ID also, and plus you can also WhatsApp us. So we'll schedule a call and clear all your doubts right. So you can do all of this but please make it a habit to make your notes right. And please what you can do, what else you can do is so NLG is a topic that is very common. तो ये वर्बल रीजनिंग का बहुत ही कॉमन टॉपिक है. व्हाट यू कैन डू इज ऑल्दो वी विल प्रोवाइड यू शीट्स बट देन यू कैन ऑल्सो सर्च ऑन गूगल एंड ट्राई टू do a few questions from NLG right. But we will share, obviously we will share practice sheets right. So don't worry about that, we will be sharing soon. The practice sheet would be shared soon and it would be uploaded in the portal as well right. So you can download that file from download material section correct, and that would be a PDF. So what I would suggest you that if you are not gadget friendly, then do one thing, take a printout and try to do it offline right. So it will not strain your eyes as well as it would be a good exercise for you as well correct. Chalo. So let's move forward today and I formally welcome you all to this new lecture on classifications. So let's continue this lecture and see what classification actually is है ना. तो कभी भी जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस, कभी भी किसी वर्ड का आपको मतलब समझ में नहीं आता बिकॉज एनर्जी एंड क्लासिफिकेशन इसमें वर्ड्स बहुत ज़्यादा है ना. वर्ड वर्बल बेस्ड है एंड एंटोनियम सिनोनियम्स में भी हमको याद करना पड़ता है बट ट्राई टू डू दिस वन एक्सरसाइज एंड इट विल हेल्प यू अलॉट. एंड what is this one exercise? It is that whenever you are not whenever you are not getting the meaning of any word, try to break it into different words right. Classification, so classification comes from the word classify. What classify? So I'll tell you a very basic definition so that you can relate to what this word is. So सबके schools में classes होती हैं right, classes होती हैं correct, from 1 class, 2nd class, 3rd class, you might be in 8th class right. And 8th class also has different sections right. So you might be having A, B, C, D sections correct. So what is this class? What is this 8th class? It is a group of students. It is a group of students who are studying in class 8 correct. Class 8th right. ऐसा ही है ना. क्लास 8th में कौन से बच्चे हैं है ना. why do we call this a class? why we call this a class? First question is this, हम इसको class क्यों बोलते हैं? Why do parents say कि आप class 8th में हो या class 7th में? Why class? Because you are studying with students who are also in the same age or same group basically है ना. So for example in class 8th all the students who are in your class are in class 8th correct. So they share a common characteristics. What is that common thing that all of the students share? That they all are in class 8, they all are in grade A, or we can say grade A right. So what would classification mean? Classification का मतलब होगा क्या right. So it is made from the word class. You can see that there is a word called class right. So what is a class? अभी हमने देखा
कि क्लास 8th में सारे 8th क्लास के बच्चे, है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं बोलूँ कि 10th क्लास का बच्चा आपके क्लास 8th में पढ़ रहा हो, है ना? ऐसा तो नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस, मतलब ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, बट इज़ इट पॉसिबल कि क्लास 10th का बच्चा आपके क्लास 8th में आके पढ़ रहा हो? नहीं, जितने भी क्लास 8th में बच्चे हैं वो सारे ग्रेड 8 के हैं, राइट? सो दे शेयर अ कॉमन थिंग, देयर इज़ अ कॉमन थिंग, कॉमन रिलेशनशिप बिटवीन ऑल ऑफ यू कि यू ऑल आर स्टडिंग इन क्लास 8th. सो क्लास मीन्स अ सर्टेन ग्रुप ऑफ थिंग विच शेयर अ कॉमन प्रॉपर्टी. ऐसा ग्रुप्स होते हैं जो एक कॉमन प्रॉपर्टी शेयर करते हैं. जैसे आपने ये ग्रेड जो क्लास 8th है ना, उसमें सारे बच्चे 8th क्लास के हैं. सो दे शेयर अ कॉमन थिंग दैट ऑल आर स्टडिंग इन ग्रेड ए, करेक्ट? इसीलिए उसको क्लास बोलते हैं, है ना? क्लास इसीलिए बोलते हैं बिकॉज क्लास मीन्स कि हम सारे बच्चों में एक चीज़ कॉमन है. वो कॉमन चीज़ क्या है कि ऑल ऑफ देम आर स्टडिंग इन क्लास 8th, करेक्ट? सो क्लासिफिकेशन का क्या मतलब हो गया? क्लास का मतलब हमको समझ में आ गया. क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है कि जब हम ऐसे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मतलब ग्रुप करते हैं कुल मिला के. जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेल यू वन एग्जाम्पल कि लेट्स से एक एग्जाम्पल है कि कार है ना, राइट? कार है. आई एम यू नो गिविंग यू 4 words: कार, बस, करेक्ट? कार, बस, स्कूटर, right? And let's say what I can say next: car, bus, scooter, and let's say another one is you can take any vehicle. Let's say 4 4 2 and mm, give me a four-wheeler. Jeep, let's say Jeep, correct? Right? So I'm making this a group and I'm asking you कि इसमें से odd one out क्या है? So again I'll make another group: car, bus, jeep, right? तो ये तीनों ही जो व्हीकल्स हैं, है ना, ये तीनों ही जो व्हीकल्स हैं दे आर फोर व्हीलर्स, राइट? फोर व्हील्स होते हैं सब में, है ना? सो आई कैन कीप देम, आई कैन क्लासीफाई देम इनटू अ ग्रुप. इस ग्रुप का नाम मैं क्या रखूंगा? फोर व्हीलर्स, है ना? फोर व्हीलर्स मीन्स कि इन सबके पास फोर व्हील्स हैं, है ना? कार में भी फोर व्हील्स होते हैं, है ना? कार में भी फोर व्हील्स होते हैं, बस में भी फोर व्हील्स होते हैं, और मतलब ऑन एन एवरेज, राइट? ऐसा अब ऐसे आप बोलोगे कि सर बस में तो एक यहाँ होता है, एक पीछे भी होता है ना? तो दैट आई एम नॉट काउंटिंग, आई एम काउंटिंग कि चार साइड्स पे चार व्हील्स होते हैं, राइट? तो कार में भी फोर व्हील्स होते हैं, बस में भी फोर व्हील्स होते हैं, एंड जीप में भी फोर व्हील्स होते हैं, करेक्ट? तो सब में फोर व्हील्स हैं. सो वी कैन ग्रुप देम इनटू अ, मतलब वी कैन कंबाइन देम इनटू अ ग्रुप, है ना? ये ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? इस ग्रुप को हम बोलेंगे क्लास ऑफ फोर व्हीलर्स, ठीक है? इसी को बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन. ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम इनको एक ग्रुप में डाल देते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जो एक कॉमन प्रॉपर्टी शेयर करते हैं. कॉमन प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि दे ऑल आर फोर व्हीलर्स, दे ऑल हैव फोर व्हील्स. इनके पास कॉमन प्रॉपर्टी है ना, सबके पास फोर व्हील्स हैं. सो ऐसी कॉमन प्रॉपर्टीज वाले ऑब्जेक्ट्स को जब हम एक साथ ग्रुप में रख देते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है? अब ये कॉमन प्रॉपर्टीज कुछ भी हो सकती हैं. जैसे यहाँ पे फोर व्हील्स थे, कॉमन प्रॉपर्टी, है ना? इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ शेप, है ना? लेट्स से कोई राउंड है ना? कोई रेक्टेंगल है ना? कोई ट्राइंगल है ना? तो ऐसे कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो राउंड है? बहुत सारे हैं. जैसे मैं मान लो रिंग बोलता हूँ, रिंग, है ना? मान लो एक रिंग है ना? उसके बाद जो वुमेन्स पहनती है ना हाथ में, क्या बोलते हैं उसको? बैंगल्स भी ऐसे होते हैं, राउंड शेप के होते हैं. तो कैन आई ग्रुप अ रिंग एंड बैंगल इनटू अ ग्रुप? Can I combine ring and bangle into a group? Yes, because they both are circular in shape, right? So this classification can be on the basis of shape, it can be on the basis of size मतलब कोई बहुत tall है, let's say, है ना? trees बहुत tall होते हैं, correct? तो मैं ऐसे objects जो बहुत tall हैं उनको एक group में रख सकता हूँ, है ना? कैटेगरी हम बना सकते हैं कोई किसी कलर के बेसिस पे. फॉर एग्जाम्पल अफ्रीकन्स, है ना? अफ्रीकन्स आर जनरली ब्लैक, है ना? दे आर ब्लैक इन कलर्स, है ना? तो हम उनको एज अ ग्रुप में क्या बोलते हैं? अफ्रीकन्स, है ना? ये क्या है? अफ्रीकन्स इज ऑल्सो क्लासिफिकेशन. हमने क्लासीफाई किया है ना अफ्रीकन्स. हम बोलते हैं इंडियंस. हम ऐसे क्यों बोलते हैं इंडियंस? बिकॉज ऑल ऑफ अस आर लिविंग इन इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना? और अगर कलर के बेसिस पे मेरे को करना हो, है ना, हम अमेरिकन्स भी बोलते हैं. अमेरिकन्स आर वाइट्स, ब्लैक एंड वाइट्स, है ना? ऐसे बोलते हैं ना, अमेरिकन्स आर वाइट्स. तो ये जो वाइट वर्ड है ये कहाँ से आया है? कलर के बेसिस पे आपने क्लासिफिकेशन किया है ना? ब्लैक्स को कलर के बेसिस पे क्लासिफाई किया है ना?
सो अफ्रीकन हैव बीन क्लासिफाइड ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ वेयर दे लिव, है ना, वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में रहते हैं, वो तो है ही। अब ऑल्सो ब्लैक कलर के होते हैं, दैट इज़ वाई ऑल्सो, है ना। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अफ्रीकन्स आर जनरली ब्लैक, है ना। तो क्लासिफिकेशन हमने कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कलर, करेक्ट। तो ऐसे जब हम जब सिमिलर कॉमन प्रॉपर्टीज़ के ऑब्जेक्ट्स को, है ना, एक साथ एक ग्रुप में रख देते हैं, है ना, दैट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब वो कॉमन प्रॉपर्टी जो है वो कुछ भी हो सकती है, वो कॉमन प्रॉपर्टी शेप भी हो सकती है, साइज भी हो सकती है, कैटेगरी भी हो सकती है, करेक्ट, कलर भी हो सकता है और ट्रेड भी हो सकता है ना। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं, हमको ऑड ऑब्जेक्ट निकालना रहता है। ऑड ऑब्जेक्ट मतलब कि जो वो कॉमन प्रॉपर्टी शेयर नहीं कर रहा है ना। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल दिया था, कार, है ना, बस, जीप, एंड लेट्स से मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूँ, स्कूटर, राइट। स्कूटर होती ना, या स्कूटी, स्कूटी या स्कूटर एक ही बात है ना। स्कूटी लिख लो आप यहाँ पे, स्कूटी वुड बी मोर रिलेटेबल, स्कूटी लिख लिया, है ना। तो मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि इसमें से कौन सा ऑड है। ऑड मतलब कौन सा, देखो ऑड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑड। ऑड वन आउट का क्या मतलब होता है, ऑड वन आउट का ये मतलब होता है कि जैसे मान लो मेरे ग्रुप्स हैं, है ना, मेरे पास ग्रुप में 4 ऑब्जेक्ट हैं, है ना। तो 4 में से आउट ऑफ 4 3 की कुछ कॉमन रिलेशनशिप होगा या कॉमन प्रॉपर्टी होगी, है ना, और एक अलग होगा उनमें से। तो वो जो एक अलग है वो हमको निकालना है, दिस इज कॉल्ड द ऑड वन आउट, है ना। इनमें से ऑड कौन है, करेक्ट। तो 4 में से अगर 3 कोई पर्टिकुलर कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, है ना, तो हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा होगा, दैट वुड बी ऑड वन आउट, करेक्ट, क्लियर है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि कार में कितने व्हील्स होते हैं, 4 व्हील्स होते हैं, बस में भी 4 व्हील्स होते हैं, करेक्ट, और जीप में भी 4 व्हील्स होते हैं। बट स्कूटी में क्या 4 व्हील्स होते हैं, नहीं, स्कूटी में 2 व्हील्स होते हैं। तो यहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी क्या हो गई, कॉमन प्रॉपर्टी यहाँ पे ये हो गई कि 3 में जो कार, बस एंड जीप है, इन सब में 4 व्हील्स हैं, है ना। सो दे बिलोंग टू अ ग्रुप, है ना, दे बिलोंग टू अ क्लास। बट ये जो स्कूटर है, दिस डजंट बिलोंग टू दिस क्लास, बिकॉज स्कूटी में कितनी, स्कूटर या स्कूटी में कितने व्हील्स होते हैं, 2 व्हील्स होते हैं, है ना, स्कूटी में 2 व्हील्स होते हैं। सो वो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में नहीं आएगा। सो दिस इज द ऑड वन आउट। कंसेप्ट क्लियर है ना। एग्जाम्पल्स करें कुछ और एग्जाम्पल्स करें, है ना। चलो और एग्जाम्पल्स करते हैं। पहले हम एक बार टाइप्स देख लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे हम एग्जाम्पल्स करेंगे, है ना। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिए, है ना। एक ये वाला देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, एग्जाम्पल 2 भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 तो हमने देख लिया, कौन सा है, नोट डाउन कर लो उसको, कार, जीप, बस एंड स्कूटी, है ना। ये पहला एग्जाम्पल था। इसमें व्हाट इज द ऑड वन आउट, स्कूटी इज द ऑड वन आउट, है ना। वाई इज स्कूटी एन ऑड वन आउट, क्योंकि बाकी ये जो 3 हैं इनमें 4 व्हील्स हैं और स्कूटी में कितने व्हील्स हैं, स्कूटी में 2 व्हील्स हैं, तो इसीलिए इस क्लास में ये बिलोंग नहीं करेगा स्कूटी, है ना। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, अगेन वही वाला जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, रिंग, है ना, बैंगल, लेट्स से बैंगल एंड प्लेट, करेक्ट, एंड रिंग, बैंगल, प्लेट, और क्या ले सकते हैं हम, टायर, है ना। अब मान लो इसमें निकालना है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ विच इज़ द ऑड वन आउट, तो आप कैसे करोगे, आप देखोगे रिंग, रिंग कैसी होती है, रिंग ऐसी होती है ना, हॉलो सी होती है, हॉलो सी मतलब ऐसे होती है ना, रिंग इसमें पहनते हैं ना, फिंगर्स में पहनते हैं, तो ये स्पेस होता है ना, होल होता है बीच में रिंग में। बैंगल्स में भी होल होता है ना, बैंगल्स थोड़े बड़े होते हैं और बैंगल्स में भी होल होता है, तभी तो हाथ में आ पाएंगे, तभी तो रिस्ट में आ पाएंगे, करेक्ट। प्लेट कैसी होती है, प्लेट में तो हम खाना खाते हैं, है ना, प्लेट ऐसे गोल सी होती है, ठीक है, प्लेट ऐसे गोल सी होती है, बट होल नहीं होता इसमें, है ना, होल नहीं होता इसमें, क्योंकि होल होगा तो खाना गिर जाएगा हमारा, है ना, होल होगा तो खाना गिर जाएगा, सो होल नहीं होता इसमें। टायर, टायर कैसे होते हैं, टायर में भी होल्स होते हैं ना। कभी टायर पंचर हुआ है, जब भी टायर पंचर होता है तो उसको वो मैकेनिक खोलता है, तो आप देखोगे कि टायर के बीच में ऐसे होता है, टायर, टायर कैसे बना रहता है, ऐसे बना रहता है ना, बीच में ऐसे स्पाइक होता है और यहाँ से ऐसे लगा होता है ना, इस टाइप से, करेक्ट। साइकिल का टायर देखा है ना, ऐसे ही होता है, तो इसमें भी होल होता है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्या हो गया कि रिंग में भी होल है ना, बैंगल्स में भी होल है बीच में, टायर में भी होल है बीच में, बट एक प्लेट ही ऐसा है जिसमें बीच में होल नहीं है, करेक्ट। तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, प्लेट, प्लेट वुड बी ऑड वन आउट। क्यों ऑड वन आउट हो जाएगा प्लेट, बिकॉज बाकियों में होल तो है
बट प्लेट में होल नहीं है। आर वी क्लियर ऑन दिस? आर वी क्लियर ऑन दिस? तो ऑड वन आउट क्या यहाँ पे हो गया? प्लेट। दोनों एग्जाम्पल्स हमने समझ लिए। पहले वाले में क्या था? 4 व्हील्स थे, है ना, यहाँ पे 2 व्हील्स थे, तो ये रिलेशनशिप फॉलो नहीं कर रहा था, ये कॉमन प्रॉपर्टी में नहीं आ रहा था। यहाँ पे इस क्लासिफिकेशन में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि रिंग, बैंगल और टायर इन सब में होल्स हैं, बट प्लेट में होल नहीं है ना। सो प्लेट वुड बी एन ऑड वन आउट। वेरी वेरी सिंपल, करेक्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब ये जो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं, इनमें कुछ टाइप्स होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स? लेट अस सी कि टाइप्स कैसे होते हैं। अच्छा, यू कैन ऑल्सो गिव अस द फीडबैक अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लेक्चर्स बहुत स्पीड में चल रहे हैं या बहुत तेज़ चल रहे हैं, है ना। यू कैन ऑल्सो गिव अस अ फीडबैक सो दैट वी विल इनकॉर्पोरेट दोज थिंग इन कमिंग लेक्चर्स। अगर आपको लग रहा है बहुत धीरे चल रहा है ना, देन ऑल्सो यू कैन टेल अस। अगर आपको लग रहा है बहुत तेज़ चल रहा है, देन ऑल्सो यू कैन टेल अस, करेक्ट। तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं ना। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होते हैं? पहला है चूजिंग द ऑड वर्ड। एक एक करके हम सारे देखेंगे। सो इन टुडेज लेक्चर विल फोकस मोर ऑन दीज फर्स्ट टू, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये दोनों पे फोकस करेंगे, करेक्ट। सो इन 2 लेक्चर्स बेसिकली विल फिनिश अ टॉपिक, है ना। तो पहला क्या है? चूजिंग द ऑड वर्ड। दूसरा क्या है? चूजिंग द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स, करेक्ट। पहला है ऑड वर्ड चूज करना है, जैसे अभी हम पीछे कर रहे थे, है ना। और दूसरा टाइप होता है चूजिंग द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स, इसमें पेयर्स होते हैं, अभी हम देखेंगे आगे। उसके बाद आता है चूजिंग द ऑड लेटर और ग्रुप, और उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन होता है दैट इज चूजिंग द ऑड नंबर, पेयर एंड ग्रुप, है ना। तो ये 4 टाइप के बेसिकली क्वेश्चंस जनरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, और आप देखोगे कि आगे जाके जब आप बैंक पीओ के लिए भी अगर करते हो अप्लाई, या फिर एसएससी, सीजीएल, इन सब में भी इस टाइप की रीजनिंग पूछी जाती है, इंक्लूडिंग एनटीएससी एज वेल, है ना। तो एनटीएससी ऑल्सो आस्क सच क्वेश्चंस। तो हम तो बेसिक से पढ़ रहे हैं, हम तो बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे, और विल ट्राई टू गेन द अंडरस्टैंडिंग कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं, है ना। देखो, जो रीजनिंग है ना, रीजनिंग ऐसी चीज़ है जो आपको प्रैक्टिस से आएगी, है ना। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू विल गेट बेटर एट इट, है ना। सिर्फ लेक्चर पढ़ने से, है ना, नोट डाउन कर लेने से रीजनिंग नहीं आती है ना। वेरी वेरी सिंपल, आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो रीजनिंग की, उतनी प्रैक्टिस आप करो। आप देखोगे कि आपकी रीजनिंग इतनी अच्छी हो जाएगी। मैथ्स एंड रीजनिंग आर बोथ सच टॉपिक्स, मैथ्स एंड रीजनिंग, दीज बोथ आर सच टॉपिक्स जिसमें आप जितना प्रैक्टिस करो उतना यू विल बेनिफिट। डजेंट मैटर कि आपका IQ लेवल क्या है, डजेंट मैटर आपका अंडरस्टैंडिंग, ग्रास्पिंग पावर कैसा है। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू विल गेट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, है ना। एंड द मोर यू रिवाइज दीज थिंग्स, द मोर यू विल गेट बेटर एट इट, है ना। सो हमेशा मैं बोलता हूँ कि टैलेंट इज़ वन थिंग, टैलेंट इज़ वन थिंग, बट हार्ड वर्क इज़ अनदर थिंग। एंड if you are hard working but you are not talented, then also you will succeed, है ना। But if you are talented, so these two statements are very very important. One thing is that if you are talented, है ना, if you are talented and if you are hard working also, है ना, then तो you will be on the top of the world, है ना। But if you are talented, है ना, let's say your IQ is very high but you are not hard working, you are not hard working, then you will not go far enough, है ना। मैंने बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं, दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा IQ होता है, बट they are not living their life as compared to what the low the people, the students who were less talented than them are living, because they were hard working, right. So hard work is common in everything. So let's say if you are not talented, right, but you are very very hard working, then you will be on top of your field every time, right. So hard work is very important, don't shy away from this, right. This is very important in every stage of life, be it 8th, be it 9th, be it 12th, be it college, or be it after college, even in your workplace, this thing will take you places. So don't ever try to be very lazy and be very complacent with what you have, right. So don't do that. Be hardworking. That is one mantra to succeed. Only hard work. This is the only mantra to succeed. So any exam you want to crack, anything that you want to do in life, this is a thing you have to do. Correct? चलो